Good morning, guys. Welcome back to Abhi Institute of Spoken English. This is Bijen, your mentor. I am here as usual to share something with you guys regarding spoken English. Guys, in last 4 lectures, we have learned many phrasal verbs, right? Right now, I will repeat the same sentence again. That is, phrasal verb is much important for spoken English. So I would request you kindly focus on the phrasal verb in addition to vocabs and basic grammar, right? Actually, phrasal verb give us liberty while we speak English. Phrasal verb give us few options for a single word when we speak English, and in this way we can make our English, our spoken English more impressive, right? Suppose in our conversation we have to repeat the same word, then if we have different option for the single word, then we can use different word and we can make our English impressive. If we use the same word again and again in our conversation, then our English will become monotonous, right? And I will take one example. Suppose there is sentence, मुझे ये कहना है कि मैं आगरा के लिए निकल पड़ा. अभी क्या होगा? We just get stuck and we will hesitate to speak English. निकल पड़ा यार, उसका गो मीन्स जाना होता है, रन मीन्स दौड़ना होता है, क्या लगाएं इस निकल पड़ा के लिए. Then in such case phrasal verb helps us a lot, right? तो निकल पड़ा के लिए यूज करते हैं start for एक phrasal verb है, right? Then how do we make the sentence? He started for Agra, right? अब हमें दोबारा हमारे कन्वर्सेशन में सेम सेंटेंस बोलना है कि वो आगरा के लिए निकल पड़ा और वो एटा के लिए निकल पड़ा. Then we can use he left for Eta, he started for Agra, right? We use two words for a single word, right? So in this way our English becomes impressive, right? And if we want to use only single word, then we will use just start for. It will give the good impression, right? We should not use the left. In place of left, we should use start for. So there are more than thousands of phrasal verbs, right? So I will try to share some important phrasal verb gradually with you guys so that you can make your English impressive, right? So guys, today we will jump again into grammar section, right? So till the date we have learned noun, pronoun, preposition and interjection in grammar section, correct? So today we will pick new topic, that is adverb. So guys, without any further delay, let's get onto the screen. First of all, we will learn what is the adverb, right? अगर हम इस नाम का हिंदी में मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है क्रिया विशेषण, राइट? मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. बट दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट, राइट? अब तक हमने यही पढ़ा है एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, बट ये डेफिनेशन, आई एम नॉट सेइंग दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट, राइट? तो व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन? कंप्लीट डेफिनेशन इज वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब, मॉडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब, राइट? क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे शब्द जो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं या क्वालिफाइज करते हैं. मतलब क्वालिफाइज मीन्स विशेषता बताना, मतलब वो किसी वर्ब की, एडवर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है? या फिर मैंने बोला मॉडिफाइज मतलब मॉडिफिकेशन, ठीक है? मॉडिफिकेशन क्या होता है? जैसे हमने कोई बाइक है, हमने उसे मॉडिफाइड करा लिया, कोई जीप है उसे मॉडिफाइड करा लिया. तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है? जो ओरिजिनल फॉर्म होता है चीज का, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, बट हम ओरिजिनल चीज को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करते या बदलते नहीं, उसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं. तो एडवर्ब क्या करते हैं? जो भी वर्ड है
उसको मॉडिफाइड कर देते हैं, मतलब उसके मीनिंग को मॉडिफाइड कर देते हैं, राइट। जैसे किसी वर्ड का मतलब मान लो ईट मीन्स खाना, ठीक है, तो अब मैंने एक एडवर्ब लगा दिया उसके साथ में, ईट बैडली, मतलब बुरी तरह से खाना। तो ईट मीन्स खाना था, अब उसे मॉडिफाइड अर्थ उसका क्या हो गया, तो बुरी तरह से खाना, ठीक है ना। तो एडवर्ब का मतलब क्या हो गया, जो वर्ड मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। क्वालिफाई भी कर रहा है कि वो बता रहा है कि खाना तो खा रहा है, बट किस तरह से खा रहा है, बुरी तरह से खा रहा है, तो उस वर्ड की विशेषता बताई, ठीक है। तो उस जो वर्ब है ईट को उसने मॉडिफाई किया, क्वालिफाई किया। अब बात आती है डेस्क्राइब की। डेस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बताना, मतलब डेस्क्राइब करना, थोड़ा डिटेल में बताना। तो ये वर्ड उसे डेस्क्राइब भी कर रहा है कि खाना कैसे खा रहा है, बुरी तरह से खा रहा है, मतलब और थोड़ा डेस्क्राइब करके बता दिया, खाना तो खा रहा है बट ईटिंग बैडली, राइट। तो क्लियर हुआ एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं या फिर क्वालिफाई करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एक सिंगल लाइन में मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं। वो शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताएं या उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दें, तो वो एडवर्ब होते हैं। आई होप फंडा क्लियर हो गया होगा एडवर्ब के बारे में। आगे चलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है एडवर्ब का। एडवर्ब सेंटेंस में कैसे आता है, ठीक है। एडवर्ब आता है, वर्ब होगी तो वर्ब के बाद आएगा, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, राइट। तो फॉर्मूला है, पहले डूअर आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी और उसके बाद में एडवर्ब आएगा, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो। जैसे ही इज ईटिंग बैडली, ठीक है, ही डूअर हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और ईटिंग आपकी मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद में आपका एडवर्ब आ गया बैडली। तो बैडली है, ईट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला जैसे मान लो मैंने बताया कि या तो वर्ब के बाद आएगा और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला ले लेते हैं। ही इज ईटिंग फूड बैडली, वह खाना बुरी तरह से खा रहा है। तो अब हमारा एडवर्ब क्या है, बैडली, वो किसके बाद आया, फूड के बाद, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आया, राइट। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला कि एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, ठीक है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। तो अब उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज टॉकिंग पोलाइटली, वो कैसे बात कर रहा था, पोलाइटली, राइट। तो पोलाइटली क्या है, एडवर्ब है, और टॉकिंग मतलब बात करने की उसने विशेषता बताई, टॉकिंग को क्वालिफाई किया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज क्राइंग जेंटली, जो जेंटल लोग होते हैं वो अगर रोते भी हैं तो भी वो जेंटली ही रोते हैं, मतलब ठीक है ना, सभ्यता के साथ में चिल्ला, अगर चिल्ला भी रहे हो किसी पे तो मतलब उसमें भी एक सभ्यता होगी। तो ही इज क्राइंग जेंटली, ठीक है, जेंटली एडवर्ब है यहाँ पे। ही इज प्लेइंग हैप्पीली, राइट, वो कैसे खेल रहा है, खुशी से खेल रहा है, हैप्पीली इज एडवर्ब। मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग किया हुआ है, जो रेड में लिखा हुआ है वो एडवर्ब है, आपकी पहचान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देते हैं। मैंने बोला एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में क्या बताया था कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो अब एग्जांपल लेते हैं एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव के, ठीक है। पहला एग्जांपल, दिस मिल्क इज एक्सट्रीमली चिल्ड। अब इसमें एडवर्ब कौन सा है, एक्सट्रीमली, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस से एक्सट्रीमली हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो सेंटेंस क्या बचेगा, द मिल्क इज चिल्ड। सेंटेंस पूरा हो गया, कोई गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं सेंटेंस में, कि दूध ठंडा है। अब ठंडा है लेकिन कैसा ठंडा है, एक्सट्रीमली चिल्ड, बहुत ठंडा है। तो अब जो एक्सट्रीमली है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, चिल्ड को, ठीक है। और चिल्ड किसकी विशेषता बता रहा है, मिल्क की। मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, समझने की कोशिश करना, यहीं पे ध्यान रखना, समझ में आएगा आराम से। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट अगर समझो ध्यान नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आने वाला। द मिल्क इज एक्सट्रीमली चिल्ड, दूध बहुत ही ठंडा है। तो एक्सट्रीमली ने किसको क्वालिफाई किया, चिल्ड को, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, दिस टी इज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। अगर एक्सट्रीमली हटा भी दूं तब भी सेंटेंस गलत नहीं है। दिस टी इज हॉट, ये टी गर्म है, बट कैसी गर्म है, एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है जो हॉट को क्वालिफाई कर रहा है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, यू आर सो काइंड,
राइट, आप बहुत दयालु हैं, राइट, तो सो क्या है, एडवर्ब काइंड को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट शीट। अब मैंने बोला था एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। सी पेंट्स रियली वेल, ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं रियली हटा दूं इसमें से तो क्या बचा, सी पेंट्स वेल, तो वेल यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब ये वेल क्या कर रहा है, पेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है कि पेंट्स तो किया, कैसे किया, अच्छी तरीके से, ठीक है। अब मैंने इसमें रियली और ऐड कर दिया, तो रियली क्या है, जो एक एडवर्ब पहले से है सेंटेंस में वेल, उस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है कि उसने पेंट तो अच्छे से किया, रियली मतलब वाकई में उसने पेंट अच्छे से किया, ठीक है ना। ये दिस इज द एडवर्ब ऑफ एडवर्ब, ठीक है, मैंने नीचे लिखा भी है। सचिन प्लेड रियली वेल, सचिन बहुत अच्छे से खेला, तो यहाँ पे जो वेल एडवर्ब है उस एडवर्ब को रियली एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। वेल एडवर्ब हो गया, रियली एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गया, राइट। ही सिंग्स इंडीड गुड, वह वाकई में बहुत अच्छा गाता है, गुड एडवर्ब हो गया और गुड को भी क्वालिफाई कर दिया किसने, इंडीड ने, राइट। आगे चलते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है, एक्सक्यूज मी, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ पे 5 तरह के एडवर्ब होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, हिंदी में बोलते हैं ढंगवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दर्शाने वाले विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाण या मात्रा बताने वाले विशेषण, ठीक है, एडवर्ब क्रिया विशेषण एक्चुअली, ठीक है। तो अब इनको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे, कुछ एग्जाम्पल के साथ में, राइट। एडवर्ब ऑफ मैनर, पहला काइंड क्या था, पहला प्रकार क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो इसे पहचानेंगे कैसे, क्या है, काम करने का ढंग या तौर तरीका बताते हैं। ये एडवर्ब क्या करते हैं, काम करने के तरीके को या उसका ढंग बताते हैं, तो उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के लिए ये मतलब रटने की जरूरत नहीं है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें उसकी परिभाषा नहीं बतानी, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या मतलब एकेडमिक में ये आपके काम आ सकता है, तो अगर आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है सीख लीजिए, अच्छी बात है। और स्पोकन इंग्लिश में तो काम आते ही आते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन भी याद कर लेंगे तो आपको एकेडमिक में भी हेल्प करेगा, जब आपकी क्लास में सब पढ़ाए जाएंगे तो आप आगे आगे बोलोगे, ठीक है ना, आपको कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर रहेगा, राइट। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, काम करने का ढंग या तरीका बताते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे लेजीली, क्विकली, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, फास्टली, ऑनेस्टली, ठीक है, ये क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही वर्क्स ऑनेस्टली, वो काम करता है, कैसे करता है, ईमानदारी से, राइट। तो ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब, वो वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। अगला टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिनसे स्थान का पता चलता है। जो एडवर्ब स्थान के बारे में बताते हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। एग्जांपल, हियर, अप, नियर, बैकवर्ड, आउट, बैकग्राउंड, अवे, देयर, डाउन, बैक, फॉरवर्ड। एग्जाम्पल, ही लिव्स हियर, वो रहता है, कहाँ रहता है, यहां रहता है, ही लिव्स हियर, वो यहां रहता है। नेक्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिससे समय का पता चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल, नाउ, टुडे, यस्टरडे, देन एंड